میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اجتماعی طور پر دلی کی سرزمین پر زنا ہوا، گینگ ریپ ہوا، اللہ اکبر۔ اس وقت کے حالات یہ ہوئے، ملک کا ہر لیڈر بول پڑا، ملک کا ہر رہنما بول پڑا، ملک کا ہر سیاستداں بول پڑا، ہندوستانی ناریوں کی عزت غیر محفوظ ہو گئی، ہندوستانی بچیوں کی عزت غیر محفوظ ہو گئی۔ لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں، لوگ مردوں ہی کو کیوں گالیاں دیتے ہیں؟ یقیناً اس میں مردوں کا قصور ہے، لیکن جب زنا ہوتا ہے اس میں سب سے زیادہ قصور عورتوں کا ہوتا ہے، اس لیے کہ اگر عورتیں بن سنور کر گھر سے نہ نکلیں تو انہیں دیکھے گا کون؟ ان کے فتنے میں مبتلا کون ہوگا؟ حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، جو برقع اتنا مزین کیا جائے، جو برقع اتنا سجا دیا جائے کہ برقعے کی سجاوٹ کی وجہ سے لوگ عورت کو دیکھنے لگے یا عورت کی طرف متوجہ ہو، ایسا برقع پہننا بھی حرام ہے، اس لیے کہ اسلام میں برقع پہننے کا حکم نہیں ہے، اسلام میں پردہ کرنے کا حکم ہے۔ جو برقع تمہیں بے پردہ کر دے، جو برقع لوگوں کو دعوت نظارہ دے، جو برقع لوگوں کو تمہاری طرف متوجہ کرے، جو برقع لوگوں کو تمہاری طرف آمادہ کرے، وہ برقع نہیں ہے، وہ لعنت کا ذریعہ ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے 800-900 سال پہلے فرمایا کہ ایسا برقع حرام ہے جس کے اندر زینت ہو۔ اب آپ دیکھیں، عورتیں کیا زنا کے رستے پر نہ چل پڑی، برقع بھی پہن کر نکلتی ہے، اس میں نگ لگے ہوئے ہیں، اس میں سجاوٹ ہے، طرح طرح کی بناوٹ ہے۔ برقع اس کا نام نہیں ہے، برقع وہ ہوتا ہے جو اگر جوان پہن لے تو پتا بھی نہ چلے کہ یہ بوڑھی ہے کہ جوان ہے، گزرنے والی گزر جائے، اس کی جسم کی ساتھ تو بھی پتا نہ چلے۔ ایسے برقعے ہونے چاہیے، برقعے میں کوئی سجاوٹ نہیں، برقعے میں کوئی تزئین نہیں، برقعے میں کوئی فیشن نہیں۔ اگر آبرو کی حفاظت چاہیے، عورتیں خود زنا کے رستے پر چل پڑی ہے اور اس کی زیادہ ذمہ دار وہ ہے، اس لیے کہ عورتیں اپنے آپ کو اوریاں کر رہی ہے۔ آپ مجھے بتائیں، اگر بھوکے کے سامنے کوئی گوشت لے کر کے آئے تو کیا وہ اپنی بھوک پہ کنٹرول کر سکے گا؟ یہاں تو لوگ نفس کے غلام بن چکے ہیں، عورتیں ننگی ہو کر کے گھر سے نکل رہی ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ میرا عنوان صرف مسلمان عورتوں کے لیے نہیں ہے بلکہ پورے ملک کی بچیوں کے لیے ہے، اس لیے کہ اسلام جہاں مسلم بچیوں کی عزت کی حفاظت چاہتا ہے وہیں پر غیر مسلم بچیوں کی عزت کی بھی حفاظت چاہتا ہے۔ ہمارا مذہب عورت کو عزت کی نظر سے دیکھتا ہے، ہمارا مذہب عورت کو وقار کی نظر سے دیکھتا ہے، اس لیے کہ اگر عورت بچی ہے تو وہ ماں باپ کے لیے جنت ہے، جوان ہے تو وہ اپنے شوہر کے لیے جنت ہے، ماں بن گئی ہے وہ اپنی اولاد کے لیے جنت ہے، عورت کا ہر روپ جنت ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، تو میرے رب نے فرمایا زنا کے قریب نہ جاؤ، تو برقعے کو فیشن بنا کر دعوت نظارہ دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد عورتوں کے کپڑے اتنے تنگ اور چست ہو چکے ہیں، اتنے باریک اور پتلے ہو چکے ہیں کہ اللہ اکبر، باریک اور پتلے پتلے لباس پہن کر عورتیں کپڑا پہن کر بھی ننگی ہے۔ یہ بھی زنا کے قریب جانے کے راستہ ہے، یہ بھی زنا کی طرف لے جانے والا راستہ ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا وہ عورت اتنا موٹا کپڑا پہنے گی، اور جو جتنا باریک اور پتلا کپڑا پہنے گی اس کا ایمان اتنا کمزور ہوگا۔ اللہ نے اگر کسی کو سفید چمڑی دے دی، اللہ نے کسی کو حسن دے دیا، تو عورتیں یہ تصور کرتی ہیں کہ اب ہمارا حسن نمائش کے لیے ہے، ہمارا حسن دکھاوے کے لیے ہے۔ میں اپنی بہنوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، اے خاتون جنت کی کنیزوں، تمہاری صورت تمہارے باپ سے ملتی ہوگی، تمہاری صورت تمہاری بہن سے ملتی ہوگی، تمہاری صورت تمہاری ماں سے ملتی ہوگی۔ فاطمہ اس عورت کا نام ہے جس کی صورت محبوب خدا سے ملتی تھی، جس کی زلف واللیل کی قسم اللہ نے قرآن میں یاد کی ہے۔ فاطمہ کی صورت اس محبوب خدا سے ملتی تھی جس کے رخ بددہا کا چرچا قرآن کے اندر موجود ہے۔ فاطمہ کی صورت اس محبوب خدا سے ملتی تھی، لیکن خدا
जिस्म की नुमाइश करना तो दूर की बात, सैयदा उस पे लानत करती थी। फातिमा के पर्दे का हाल ये था कि सैयदा फातिमा के दुपट्टे को कभी चांदो सूरज ने भी नहीं देखा। बाप की चौखट उंगाल करके कभी बाहर भी न निकली। आपका हाल ये था, आपके नक्शे कदम को कभी जमीन के नंगे हिस्से ने नहीं देखा। अल्लाह अकबर। आज औरतों को क्या हो गया है, खातूने जन्नत की कनीज होने का दावा करने वालियां बारीक और पतले लिबास पहनकर, कोई साड़ी पहन रही है, कोई घघरा और शरारा पहन रही है। ये इस्लामी लिबास नहीं है। इस्लामी लिबास तो वो है जो पूरे जिस्म को ढक ले, और लिबास कहते ही उसे है जो छुपा लेता है, जो छुपा न सके, जो नंगा कर दे, वो लिबास नहीं है। इसलिए लिबास पहनो। लिबास उसे कहते हैं जो जिस्म को छुपाता है, जो वजूद को छुपाता है, जो जिस्म की साख्त को छुपाता है। मेरे आका मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो औरतें बारीक और पतले लिबास पहनती हैं, ऐसी औरतें जन्नत की खुशबू से भी महरूम कर दी जाएगी। जिन औरतों के सरों पर पतले पतले दुपट्टे हैं, ऐसी औरतें जन्नत की खुशबू से महरूम कर दी जाएगी। ख़वातीन इस्लाम जरा गौर तो फरमाए। मेरे आका ने फरमाया, मैं शबे मेराज जिस वक्त मैंने जहन्नम का मुशाहिदा किया तो मैंने औरतों को जहन्नम के अंदर औंधे मुंह लटके हुए देखा। मैंने पूछा, जिब्रील ये कौन औरतें हैं? जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत की वो औरतें हैं जो कपड़ा पहनने के बाद भी नंगी रहती थी। सहाबा ने अर्ज किया, आका अगर कोई कपड़ा पहनेगा तो वो नंगा कैसे रहेगा? मेरे सरकार ने फरमाया, यानी वो इतने पतले और बारीक लिबास पहनती थी कि कपड़ा पहनने के बाद भी नंगी रहती थी। गोया के पतले और बारीक लिबास ये भी जिना का रास्ता है। उसके बाद मेरे आका ने फरमाया, कोई औरत ऐसा जेवर न पहने जिसके अंदर घुंघरू बंधा हुआ हो, इसलिए कि घुंघरू वाला जेवर अगर औरत पहन करके चलेगी तो घुंघरू की आवाज पैदा होगी, और जब घुंघरू की आवाज पैदा होगी लोग उसकी तरफ मुतवज्जे हो सकते हैं। ये भी गोया के जिना का रास्ता है। फिर मेरे आका ने फरमाया, औरत अपने जिस्म पर खुशबू लगाकर बाहर न निकले, इसलिए कि जब औरत खुशबू लगाकर बाहर निकलेगी तो लोगों की नाक में उसकी खुशबू आएगी तो लोग उसकी तरफ मुतवज्जे होंगे। ये भी जिना का रास्ता है। एक मर्तबा सैयदना फारूक आजम की नाक में खुशबू पहुंची। आपने पलट कर देखा तो औरत करीब से जा रही थी। आपने कोड़ा उठाया और उस औरत को तान दिया। फरमाया, जालिम, तू खुशबू लगाकर निकलती है, मर्दों को अपनी तरफ मुतवज्जे करती है, इसके बाद अगर तुझे इस कैफियत में देखा तो तुझे कोड़े लगाए जाएंगे। औरत खुशबू लगाकर बाहर नहीं निकल सकती, और अगर खुशबू लगाना ही है तो ऐसी खुशबू जिसका कलर गहरा हो और खुशबू हल्की हो कि करीब से गुजरने वाले को भी उसकी इत्तला न हो, ऐसी खुशबू लगाए। लेकिन ऐसी खुशबू लगाकर भी घर के बाहर निकलने की इजाजत नहीं, वो सिर्फ शौहर के लिए इजाजत है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, तो ये भी जिना का रास्ता है, ये भी जिना की राह है। औरत खुशबू लगाकर घर से बाहर निकले। मेरे सरकार मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने जहन्नम में कुछ औरतों को और मर्दों को इस हालत में देखा कि उनकी चमड़ियों को आग की कैंची से काटा जा रहा है। मैंने पूछा, जिब्रील ये कौन लोग हैं? तो अर्ज किया जिब्रील अमीन ने, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत की वो औरतें और लड़कियां हैं जो इसलिए बन संवर कर घर से निकलती थी कि लोग उनको देखें और उनके फितने में मुब्तला हो जाएं। आजकल की बच्चियों का रहन सहन देखें। कल तक तो औरतें बहरहाल फिर भी बारीक और पतले लिबास पहनती थी, लेकिन नीचे तक पहनती थी, वो भी काबिले मुजम्मत था, उसकी भी तारीफ नहीं थी, वो भी अजाब की तरफ ले जाने वाला था। लेकिन आज कैसा दौर आ गया, फातिमा की कनीज कहलाने वाली बच्चियां जींस पहन रही है, टी शर्ट पहन रही है, शॉर्ट शर्ट पहन रही है, ना बाप को फिक्र है ना माँ को फिक्र है, और बच्चियों को इसी तरीके से आजाद छोड़ दिया जाता है। इन मौलवियों को क्या समझता है, ये तो 1450 साल पुरानी बातें करते हैं।
लेकिन जब बच्ची अपना सब कुछ लुटा करके घर आती है तब बाप चार चार आंसुओं से रोता है। जब सब कुछ लुट जाता है तब बाप की आंखों में आंसू आते हैं। ओ बाप, तुझे मेरे रसूल ने फरमाया, जिसकी बेटी उड़िया घूमे, जिसकी बेटी बेपर्दा घूमे, वो बाप दय्यूस है, दय्यूस। अल्लाह उस बाप पर लानत करता है, न उसकी नमाजें कबूल करता है, न उसकी दुआएं कबूल करता है। जिस शौहर की बीवी बेपर्दा घूमे, बारीक और पतले लिबास पहने, वो शौहर भी दय्यूस है। अल्लाह न उसकी दुआ कबूल करता है, न उसकी नमाजें कबूल करता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, ये जींस और टी शर्ट भी जिना के रास्ते पर ले जाने वाली चीज थी, इसलिए कि जब बिल्कुल जिस्म से टच जो है जींस देखेगा इंसान और टी शर्ट देखेगा और या औरत को देखेगा तो उसके जज्बात भड़केंगे और वो गुनाह की तरफ माइल होगा, उसके कदम उठते चले जाएंगे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, ये लिबास भी कम तूफान नहीं मचा रहा था, लिबास तो तूफान मचा ही रहा था, कयामत बपा ही कर रहा था, माशरे में आग ही लगा रहा था। रही सही कसर अब मोबाइल ने पूरी कर दी, फोन ने पूरी कर दी, इंटरनेट ने पूरी कर दी। घर बैठे बैठे कौम की बच्चियां इंटरनेट पर दूसरे लड़कों से राब्ता करती है। मैं ये नहीं कहता कि सब बच्चियां ऐसा करती है, वल्लाह आज भी मुसलमानों की 99% बच्चियां सैयदा फातिमा के नक्शे कदम पर है। ये मेरा हुस्न ज़न है, लेकिन हमारा इज्तिमा चूंकि पूरी दुनिया में सुना जाता है और बच्चियों को आगे कोई जो है वो मिसगाइड न करे, बच्चियों की आबरू को कोई तबाह न करे, हम पहले ही से उन्हें आगाह कर रहे हैं। क्योंकि मेरे रसूल ने एक बेटी की इज्जत को काबे से बुलंद कर दिया है। कौमे मुस्लिम में औरत वो है कि अगर राबिया हज को जाती है तो काबा इस्तिकबाल के लिए चला आता है। राबिया कहती है, एक काबे तू क्यों चला आया? मैं तुझे देखने नहीं आई, मैं तो रब का दीदार करने आई हूँ, मैं तो खुदा का जलवा देखने आई हूँ। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, औरत वो है हज को जाए तो काबा आ जाए, औरत वो है हज को जाए तो काबा इस्तिकबाल के लिए आ जाए। और सिर्फ इस्तिकबाल ही नहीं बल्कि अल्लाह अकबर। एक बुजुर्ग फरमाते हैं, मैं हज के लिए निकला, इस शान से निकला, हर कदम पर 2 रकात नमाज पढ़ूंगा। मेरी कौम की बच्चियों, औरत क्या है देखो, औरत का मकाम जानो, औरत का मर्तबा जानो, औरत अल्लाह से डरने वाली बन जाए, औरत पाक दामन बन जाए, औरत मुत्तकी बन जाए, उसका मर्तबा क्या हो जाता है। बुजुर्ग फरमाते हैं, मैं इस शान से निकला, हर कदम पर 2 रकात पढ़ूंगा, हर कदम पर 2 रकात पढ़ूंगा। ऐसा भी कोई हाजी तुमने देखा है जो हर कदम पर 2 रकात पढ़ते जाए? फरमाते हैं, जब मताफे काबा में पहुंचा तो गिलाफे काबा लटका था, काबा गायब था। लोगों की नजरें देख नहीं पा रही थी कि गिलाफ काबा नहीं है। मैंने पूछा, अल्लाह काबा गया कहां? तो निदा आई, मेरे बंदे काबा राबिया का तवाफ करने के लिए गया है। राबिया कभी वो है कि हज को जाए तो काबा इस्तिकबाल को आए, और न जाए तो राबिया का तवाफ करने। ये राबिया कौन है? रंग काला है, कद नाटा है, पेवनदार कपड़े हैं, लेकिन रातों को सोती नहीं, अल्लाह की इबादत करती है। और यहां हाल क्या है? कौम की बच्चियां नेट पर, इंटरनेट पर, मुस्लिम बच्चियां बैठकर दूसरों को निकाह की दावत दे रही है, मोबाइल पर लंबी लंबी गुफ्तगू, और ये सारे खुराफात सीरियल सिखा रहे हैं। कोई तुम्हारे घर आकर के जिना की दावत नहीं देता, कोई तुम्हारे घर आकर के जिना पे तकरीरें नहीं करता कि चलो उठ करके बुराई करो। ये कहां से ये लानत आ रही है? ये लानत
सिर्फ और सिर्फ सीरियल, फिल्में इंटरनेट के जरिए से आ रही है। उन सीरियलों के अंदर ऐसी ऐसी गड़ी हुई कहानियां और दास्तानें बताई जाती है कि उसमें माअज़ल्लाह एक ननन अपनी भावज को, एक भावज अपनी ननन को सपोर्ट करती है और ये फिक्र दी जाती है कि देखो देखो जिस तरीके से मर्द कई औरतों से राब्ता करते फिरते हैं, कई औरतों से लुत्फअंदोज होते हैं, वैसे औरतें भी कई कई मर्दों से राब्ता कर लेती है। बड़ी माजरत के साथ ये कोई दूसरी औरत तो कर सकती है, कलमा पढ़ने वाली औरत नहीं कर सकती, इसलिए कि मेरे रसूल ने एक कलमा पढ़ने वाली औरत की इज्जत को काबे से बुलंद कर दिया है। मेरी बहनों, तुम वो हो कि तुम्हारी शान में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान की आयतें नाजिल की है। पूरे कुरान में आपको कहीं सूरतुल रिजाल नहीं मिलेगी, लेकिन आपको पूरे कुरान में सूरतुल निसा मिलेगी। अल्लाह ने औरतों के नाम से कुरान के अंदर सूरत नाजिल फरमाई। सूरतुल नूर के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने औरतों की फजीलत को बयान फरमाया। सूरह निसा में अल्लाह ने औरतों के मर्तबे को बयान फरमाया। सूरह आल इमरान और सूरह मरियम के अंदर अगर औरत के हवाले से देखा जाए कई सूरतें औरतों के हवाले से है, लेकिन अल्लाह अकबर, आज औरतों ने माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन जानवर से भी ज्यादा अपने आप को गिरा लिया है। क्यों? सिर्फ इसलिए आज एक चीज है, फैशन के नाम पर दुनिया जो चाहे तुमसे करवा ले। ये फैशन नहीं है, फैशन इसका नाम नहीं है, ये गंदगी है, नफ्सानी ख्वाहिशात है, ये गंदगी है, ये गलाजत है। इसकी न जाओ, इससे तुम्हारी नस्लें बर्बाद होगी। ज़िना की पैदावार न माँ का वफादार है, न बाप का वफादार है, न मिल्लत का वफादार है, न मजहब का वफादार है। क्या समझते हो कब तक के तुम रंगरेलियां करते रहोगे? अपने हुस्न का नाजायज फायदा कब तक उठाते रहोगे? जब तक जवानी है तभी तक ना, लेकिन ये जवानी 16 साल से लेकर 40 साल के दरमियान होती है। उसके बाद जवानी छीन ली जाती है दुनिया के आवारा मर्दों पर, लालच की बुनियाद पर। कभी ज़ेवरात की लालच, कभी बाइक पर घूमने घुमाने की लालच, कभी लंबी कारों की लालच, कभी दौलत की लालच। औरतों को मर्द लालच दे दे करके, मोहब्बत के बुलंद बांग दावे कर करके तुम्हारे लिए ये कर देंगे, तुम्हारे लिए वो कर देंगे, तुम्हारे लिए ऐसा कर देंगे, तुम्हारे लिए वैसा कर देंगे। कौम की बच्चियां भोली होती है, औरतें नादान होती है, अपने मुस्तकबिल का फैसला कर नहीं पाती। मोहब्बत के झांसों में आकर के वो उन नफ्स परस्तों के पीछे चल पड़ती है। लेकिन उन मर्दों का हाल बिल्कुल इस तरह होता है जैसे बाग में खिले हुए फूल पर भौरा आकर बैठता है तो फूल को यूं लगता है ये मुझसे प्यार करता है, लेकिन फूल पर बैठने वाला भौरा जैसे उसका रस चूस लेता है फिर दोबारा दूसरे फूल का रुख करता है, इसकी तरफ तक कर भी नहीं देखता। जब फल जूस फूल का रस चूसने के बाद फूल को एहसास होता है, हाय मेरी रगों से तो मेरा खून निकल गया, अब मैं मुरझा जाऊंगा। लेकिन उस वक्त का एहसास उस फूल को मुरझाने से नहीं रोकता, उस फूल की मौत से उसे नहीं बचाता। ऐ मेरी कौम की बेटियों, ऐ कनीज़ाने फातिमा, ऐ ज़ैनब की शहदाइयों, इसी तरह आजकल के मर्दों का